میرے عزیز بھائیوں، آج جس طرح کہ ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوئے اور آج کوئی عام دن ہم سیلیبریٹ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آج روح القدس کی نزولیت کا دن ہے۔ ہاللیلویا! آج پاک روح کی نزولیت کا دن ہے، جو آج سے 2024 سال پہلے 120 لوگوں کی جماعت میں بالا خانہ میں روح القدس جو ہے وہ نازل ہوا اور لوگ طرح طرح کی زبانیں بولنے لگے۔ اس دن کہا جاتا ہے کہ کلیسیا کا جنم ہوا ہے، جب یسوع مسیح نے صعود فرمایا، یعنی کہ جب وہ آسمان پر اٹھائے گئے تو اس کے بعد خدا یسوع مسیح نے ایک بات کہی تھی۔ جب ہم یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 14واں باب اور اس کی 16ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر یوں لکھا ہوا ہے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے۔ خدا یسوع مسیح نے یہ وعدہ اپنے صعود فرمانے سے پہلے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں تمہیں، جب 18ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں اسی باب کی تو لکھا، میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے، چونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے۔ اس روز تم جانو گے کہ میں باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور ہم تم میں۔ اور وہ کیا کہتا ہے کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا اور تمہیں دوسرا مددگار بخشوں گا، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی۔ اور شاگردوں نے اس بات کے اوپر عمل کرتے ہوئے جب یسوع مسیح نے صعود فرمایا تو کچھ لوگ جو ہے وہ تتر بھتر ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، لیکن 120 لوگوں کی جماعت جو ہے وہ 10 دن تک بالا خانہ میں کمرے بند کر کے خدا کے آگے دعا کرتے رہتے ہیں، خدا کے آگے آہوزاری کریازاری کرتے رہتے ہیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے یوحنا رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان اس کے 14ویں باب میں اور اس کی 16ویں آیت میں یوں کہا کہ تمہیں دوسرا مددگار میں بخشوں گا جو اب سے اب تک تمہارے پاس تمہارے ساتھ رہے گا، اور یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی ہے، لیکن جب تم دعا کرو گے تو روح القدس تم پر نازل ہوگا، اور نہ صرف نازل ہوگا بلکہ تم قوت بھی پاؤ گے۔ اور یہ جو دوسرا مددگار ہے اس کے بارے میں 26ویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، اور میں درخواست کروں گا اپنے باپ سے اور باپ میرے نام سے یہ زمین پر بھیجے گا آپ کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو خدا کی شونیت ہے، ان لوگوں کے لیے جن کا جینا مسیح اور مرنا نفع ہے، ان لوگوں کے لیے جو خدا کے کلام کو اپنے گلے کا توق بنا کر گھومتے ہیں اور بائبل مقدس کی ساری تعلیمات ان میں پیوست ہیں، اور وہ اپنی باڈی سے اپنے کردار سے کیا کرتے ہیں، پریزنٹ کرتے ہیں خدا یسوع مسیح کی شخصیت کو۔ روح القدس ان کے اوپر نازل ہوگا، اور روح القدس نہ صرف نازل ہوگا بلکہ ان کو طرح طرح کی باتیں بھی سکھائے گا، اور جو کچھ یسوع کہہ رہے ہیں کہ میں نے باتیں کی ہیں وہ تمہیں یاد دلائے گا کہ یسوع یہ باتیں کرتا تھا۔ اور شاگردوں نے کیا کیا، اس باتوں پر یقین لے آئے، اور 120 لوگوں کی جماعت بالا خانہ میں صبح دوپہر شام 10 دن تک دعائیں کرنے میں لگ گئی۔ وہ دن رات دعائیں کر رہے تھے، دن رات دعائیں کر رہے تھے، اور جب عید پینتیکوست کا وقت آیا تو کیا ہوا، آسمان سے روح القدس نازل ہوتا ہے،
ईद पेंटिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह पर जमा थे, जिस तरह आज हम इस चर्च में जमा है कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा। अजीजों, जब रूह कुछ नाज़िल होता है तो उसकी कुछ इलामात होती है, उसकी कुछ निशानियां होती हैं। कभी रूह कुछ बादल की शक्ल में जाहिर होता है, कभी हवा की शक्ल में आता है, कभी जोर की आंधी का सुनाटा होता है, और कभी ऐसा लगता है जैसे अर्थक्वेक आ गया है, ज़लज़ला आ गया है। ये खुदा पाक रूह पे डिपेंड करता है कि वो कैसे अपने लोगों के ऊपर जाहिर हो। हालेलुया। एक तरह से कभी कोई चीज खुदा अपने आप को जाहिर नहीं करता है, वो अलग अलग तरीकों से लोगों के ऊपर जाहिर होता रहा है। और रूह कुछ सिर्फ ये नए अहदनामे में 120 लोगों की जमात पर नाज़िल नहीं हुआ है, लेकिन जब हम ओल्ड टेस्टामेंट की बात करते हैं तो रूह कुछ तब भी नाज़िल होता था, लेकिन जब नाज़िल होता था तो चला जाता था। एक इंसान के अंदर आया है खुदा पाक रूह, और खुदा पाक रूह, खुदा बाप ने जिस काम के लिए पाक रूह को भेजा है, जब वो इंसान के अंदर आता है और जो बात उसने कहनी होती थी वो फर कहना शुरू हो जाता था, और जैसे वो बात कंप्लीट होती थी रूह को फिर उठा लिया जाता था। लेकिन इस बार जब नए अहदनामे में खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसके 14वें बाब में कहा है कि जब वो आएगा तो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। रूह कुछ आज से 2000 साल पहले से 2024 तक और हमेशा तक अब तक वो हमारे साथ है। और वो क्यों हमारे साथ है? क्योंकि वो हमारी रहनुमाई करता है, वो हमारी सहायता करता है। रूह कुछ हमें एक तहरीक देता है कि हमने उन तमाम बातों के ऊपर अमल करना है जो खुदा के बेटे खुदा यीशु मसीह नासरी ने बाइबल मुकद्दस में अपने लोगों के तवज्जुह से लिखवाई है। और दर हकीकत इस बाइबल मुकद्दस का जो ऑथर है, जो मुसन्निफ है, वो भी खुदा पाक रूह है। खुदा पाक रूह के वसीला से कोई भी ईमानदार शख्स कोई भी बात नहीं कर सकता है। खुदा पाक रूह हमें एक तहरीक देता है, खुदा पाक रूह हमें एक जज्बा देता है, एक एम देता है कि हमने बाइबल मुकद्दस की बातों पर अमल करना है और बाइबल मुकद्दस के तौर तरीकों के ऊपर अपनी जिंदगी गुजारनी है। पाक रूह जब इंसान की जिंदगी में आता है तो अंदर से गंदगी को दूर कर देता है। आपकी बातली शख्सियत पहले जैसी नहीं रहती है, आप निखर जाते हैं। आपका सोना सिंगार ये सारी चीजें नहीं होती है, बल्कि आपका सोना सिंगार बाइबल मुकद्दस की वो बातें होती हैं जो खुदा के कलाम में लिखी है, ताकि वो ना सिर्फ हमारी शख्सियत को परवान चढ़ाए बल्कि हमारे अंदर की सफाई भी करती है। खुदा पाक रूह हमें दुनिया से दूर ले जाता है। खुदा पाक रूह हमें खुदा के साथ एक रिश्ते में मजबूत करता है। खुदा पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है ताकि हम इब्लीस के शिकंजे में ना आ जाए। खुदा पाक रूह हमें सही और गलत की तमीज देता है। खुदा पाक रूह हमें गुनाह से दूर ले जाता है, गुनाह की लज्जतों से दूर ले जाता है। और खुदा पाक रूह एक किसी तवानाई का नाम नहीं, किसी हरारत का नाम नहीं, बल्कि ये एक शख्सियत का नाम है, ये एक शख्स का नाम है। जिस तरह मसीही अकीदा क्या है, वो ट्रिनिटी पर यकीन रखता है, जो वो वहदानियत में कसरत पे यकीन रखता है, वो तौहीद में तस्लीस पर यकीन रखता है, वो सलूस पर नहीं खुदाए सलूस पर यकीन रखता है, जो एक में तीन और तीन में एक है। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह। लोग इनको तीन खुदा समझते हैं, हमें ये नाकरीम कहते हैं, लेकिन हम इनको तीन नहीं बल्कि एक समझते हैं। लेकिन इनके काम अलग अलग है, इनकी शख्सियत अलग अलग है। खुदा बाप का काम अलग है, खुदा बेटे का काम अलग है, खुदा पाक रूह का काम अलग है। खुदा पाक रूह ना सिर्फ अब बल्कि तख्लीके कायनात से पहले मौजूद था। और जब बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं, पैदाइश की किताब में लिखा है रूह खुदा पानियों की सतह पर जुम्बश करती थी। वो जुम्बश कर रही थी, वो मंडरा रही थी, और वो इसलिए मंडरा रही थी कि एक मोहब्बत की तड़प
थी उसके अंदर और वो चीजों को क्रिएट करना चाहती थी, वो तश्कील देना चाहती थी। और ये मोहब्बत है खुदा पाक रूह की, जिसको उन्होंने पानियों की सतह पर भी ज़ाहिर किया। और रूह कुछ चीजों को क्रिएट करने की ताकत और कुदरत रखता है, चीजों को पैदा करने की ताकत रखता है। और जहां पर ये लिखा हुआ है कि खुदा की रूह पानियों पर जुम्बश करती है, वहां पर एक लफ्ज लिखा हुआ है बारा, जो इब्रानी लफ्ज है। इब्रानी लफ्ज का मतलब बारा है, यानी पैदा करने वाला। और यहोवा बारा यानी कि खुदा पैदा करता है। खुदा पाक रूह चीजों को पैदा करने की ताकत और कुदरत रखता है। जब रूह पानियों की सतह पर जुम्बश कर रहा था तो वो चीजों को क्रिएट करने की ताकत रखता है। वो मंडरा रहा था, वो जुम्बिश कर रहा था, अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर कर रहा था ताकि चीजों को पैदा करे। लेकिन चीजें तब तक तख्लीक में नहीं आई जब खुदा ने कलाम नहीं किया। जब खुदा यीशु मसीह और खुदा पाक रूह इकट्ठे होते हैं तो चीजें तश्कील पाना शुरू होती हैं, चीजें वजूद में आना शुरू होती है। हालेलुया, हालेलुया। बातें समझ आ रही है? कुछ गहरी बातें तो नहीं हो रही। रूह कुछ एक ऐसा चक्कर है, ऐसा एक उन्वान है और ऐसा एक भेद है जब तक खुदा पाक रूह खुद ना चाहे कि मैं अपने आप को किसी पर ज़ाहिर करूं, उतनी देर तक रूह कुछ के बारे में कोई समझ नहीं सकता। रूह कुछ मैंने कहा किसी तमन्नाई का नाम नहीं है, किसी हरारत का नाम नहीं है, एक शख्सियत का नाम है। ये एक शख्सियत का नाम है। रूह कुछ एक शख्स है। लिखा हुआ है कि जो 14वें बाब में यूहन्ना रसूल की मार्फ पर लिखा गया इंजीली बयान, उसके 14वें बाब में जब हमने पढ़ा कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं दूसरा मददगार तुम्हारे लिए भेजूंगा। दूसरा मददगार किसके लिए भेजूंगा? किसके लिए भेजूंगा? अब वो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। कब तक रहेगा? हमेशा आपके साथ रहेगा। अब मददगार यानी कि रूह कुद्स जो है वो दूसरा मददगार है। इसका मतलब है पहला भी कोई होगा। जो पहला है वो खुदावंद यीशु मसीह असली। हालेलुया, हालेलुया। जो पहला मददगार है वो खुदावंद यीशु मसीह असली है और जो दूसरा मददगार है वो खुदा पाक रूह। और पाक रूह आपको क्यों दिया गया है और पाक रूह आपने क्यों हासिल करना है और क्यों लोग वो 120 लोगों की जमात ने अपने कमरों को बंद कर लिया, बालाखाना को बंद कर लिया और सुबह दोपहर शाम वो वेट कर रहे थे रूह कुद्स की नज़ूलियत का। और ईद पेंटिकोस्ट वाले दिन ये वाकया हुआ। और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ मेरे अजीजों,